Is the blackboard clearly visible to you? Yes, sir. Aparna? Yes, sir. Yes, sir, it's visible. Clearly visible, sir. Only I think the people who are having iPhone, only they will get the problem to see the complete. Uh, uh, you should make your mobile horizontal and double tap my face. Sarika, what was the last interactive sentence? Sir, the last interactive sentence was what brings you are you here. Sorry. What Yeah, brings I'm you seeing here? you here. Aparna, what is the Hindi meaning of this interactive? The meaning of this interactive sentence is कैसे आना हुआ. Thank you. Mute yourself. Renu, what was the last idea? So the last Renuka, idiom mute was yourself. Yes. when the horse is stolen, lock the stable door. Thank you. Poonam, what is the Hindi meaning of this idiom? Poonam, Sir, unmute. yes, sir. Yes, sir. Up, uh, when the horse is horse is stolen, lock the sty. क्या होत का जब चिड़िया चुग गई खेत. Thank you, Poonam. Now mute yourself. Why are you invisible, Poonam? Actually, sir, my son was talking to me. That's why I was. It will be better if you are visible. Aparna, Renuka, have I given you? It reminds me. Interactive sentence. I'm deliberately asking to Renuka to check that she is up to date or not. No, sir. Aparna, have I given you it reminds me interactive sentence? Yes, sir. You have given. It reminds me interactive sentence. Okay. I was listening, I heard little bit Renuka. I heard Renuka little bit. She was telling a story. But I was not happy. She could not use used to properly. The maximum sentences were related to used to. And I know I have given used to in presence of Renuka, but she could not use it. Sarika, have I given you it makes no difference? You have already given this. It makes no difference. Okay, Aparna, have I given you you know what? No, sir. You haven't given. You know what? Okay, thank you. So, ladies, please jot it down because I will not ask before erasing. पूनम जो भी हम लिखवाते हैं आप साइमल्टेनियसली यानी समानांतर रूप से सुनते सुनते उसको लिखना है. अभी यू कैन राइट डाउन एनीवेयर. बाद में अपर्णा के या किसी की मदद से आप उसको प्रॉपर कीजिएगा. दिस इज वेरी यूजफुल एंड फेमस इंटरेक्टिव सेंटेंस. Especially, it is very much useful for ladies, and especially it is very much useful for the speakers who speak so much, address the people. And I will not ask the Hindi guest. I'm writing it. Pata.
it will help you of your breaking English. कई बार हम बोलते बोलते हमें शब्द नहीं मिलते हैं तो हम अटकते हैं। ऐसी स्थिति में इसका बहुत खूबसूरत प्रयोग देखने को मिलता है। सभी को क्रिएटिविटी करना है। आई एम स्टार्टिंग विथ Sarika, should I start with you? Yes, sir. And after completing the sentence, Sarika, you will have to ask who is ready. क्योंकि जो तैयार नहीं होगा उसको अपन परेशान नहीं करेंगे। Here we go. Okay. You know what? US always helps the Israel. पता है US हमेशा इजराइल को हेल्प करता है। Very nice, Sarika. तुमने प्रेजेंट सिंपल का ये SIS वाला प्रयोग करके एक अच्छी शुरुआत दे दी है। लेकिन ये कहने का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग प्रेजेंट सिंपल में ही सेंटेंस बनाने लग जाए। अभी तक हमने आपको जो भी चैप्टर दिया है उसका बहुत खूबसूरत प्रयोग करके बताया और इस बहाने पूनम को पता भी चल जाएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर मिल गए। और हाँ, एक बार चैप्टर की लिस्ट बना के कोई भी तो आप में से कोई एक व्हाट्सएप कर देना। और पूनम तुमने अपना कैमरा बहुत ज्यादा झुका लिया है। पूनम, बाजार में एक इस तरह का एक 30 रुपए का एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें मोबाइल फंसा सकते हैं। ओके, सारिका, आस्क हु इज रेडी। Who is ready I'm to ready. make sentence? Okay, Renuka. Yeah, Aparna, Okay, please go ahead. after you. First you. Renu, you start. Sir, you know what? Yesterday I rearranged one room for my son. Okay. So should I complete the process? Complete the process. Okay. क्या तुम्हें पता है कल मैंने अपने बेटे के लिए एक रूम फिर से रीअरेंज किया, फिर से उसको ठीक ठाक किया। Okay. Ask who is ready. Yeah, who is ready? Yeah, Aparna, please go ahead. It is a very happy moment for me when I was in delivery room and when I opened my eyes and I asked the doctor, how is my child? So I think she could not listen me, and she said, "Ki he is a boy." But I again, uh, doctor, and you know what? What did I ask? Again, I asked, "Ki doctor, how is my child?" So she started laughing. Ki she is so concerned about. She was so concerned about her child. So this is the moment of my second rebirth of. Okay, Aparna, grammatically your sentence was so nice. You used good chapter, past simple, and some more chapters. So this is good thing. If you are using more and more chapters, so it will be helpful for especially Poonam. Next, ask who is ready. I'm ready. Please, Renuka. You know what? She comes to me every day for learning Zumba. पता है वो रोज जुम्बा सीखने मेरे पास आती है। Very nice. Who is ready? I'm ready. Okay, Ritu, go ahead. You know what? My son will be going UK next month. Yeah, really? Yeah, it's really.
तुम्हें पता है मेरा बेटा नेक्स्ट मंथ यूके जा रहा है फॉर हिज फर्दर स्टडी, अपनी आगे की स्टडी के लिए। ऋतु, किसी स्थान पर पहुंचने से पहले हमेशा कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग होता है? टू। तो कहाँ है? वेयर इज द प्रपोजिशन? You know what? You have missed the preposition. You know what? My son will be going to UK in next month for his further study. Ritu, I want to ask you, is the board visible to you? Yes, sir. That board is visible to me. I want to inform everybody. आप इसको zoom in, zoom out कर सकते हैं. देखिए हम इसको डबल टैप कर रहे हैं. ये कितना zoom हो गया है. अब देखो, तुम्हें दिख रहा है ऋतु लिखा क्या है? You know what? पता. अगर आप इसमें एक भी शब्द इधर उधर लगा रहे हैं, अभी हमने दो लोगों को देखा, तो आप उसकी जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको खराब कर रहे हैं. एक भी शब्द आप अगर हिंदी में इधर उधर लगा रहे हैं, that's why I said board is visible to you or not. अभी हम दूसरा राउंड खेलेंगे. Next, who is ready? Sir, I am ready. Go ahead, please. Okay, sir. You know what? Modi ji is fully faithful for his post. आपको पता है मोदी जी अपनी पोस्ट से निष्ठावान हैं. Who is ready? Should I? Renu. You know what? Yeah. I think Poonam said, no? Poonam is rest. She did not make single sentence. Poonam, Okay, go sir. ahead. You know what? Yesterday, we. Poonam, your voice is chopping. Yesterday was my sister's birthday. आपकी आवाज कट के आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. पूनम, आप वो जो हेडफोन लगाए हुए हैं वो म्यूजिकल हेडफोन है, वो बहुत अच्छे से काम नहीं करता है. अच्छा, एक मिनट सर, रिमार्क कर देती हूँ. पूनम, आप बताएं, आप वाईफाई का प्रयोग करती हैं कि मोबाइल डेटा का? सर वो दोनों का ही करती हूँ, कभी वाईफाई कभी मोबाइल डाटा. दोनों जब एक साथ ऑन रहते हैं तो एक प्रॉब्लम ये वाली आती है जो अभी आ रही है. आप अपनी स्क्रीन को नीचे करके वहां से किसी मोबाइल डेटा को ऑफ करें. एक टच करके आप उसको ऑफ कर सकते हैं. Meanwhile, Renu, you speak your sentence. तब तक पूनम अपने आप को up to date कर लेंगी. जी सर. You know what? Nowadays I am giving advice to all people. पता, आजकल ना मैं बूढ़े लोगों को भी मशवरा देने लगी हूँ. Very good. ये जो एक्सप्रेशन है ये चाहिए, पता. And ladies, I think you must have been habitual of पता. Okay. Who is ready? I am ready. Poonam, are you ready? No. Let me ask Poonam because Poonam could not make single sentence. Yes, sir, I am ready. Now you are better. You are audible clearly. That is good. Go ahead, Poonam. You know what? Yesterday we had gone for a picnic after a long time, so we enjoyed a lot. As my sister's birthday was yesterday, was my sister's birthday. Good. Complete the process. अर्थात हिंदी बोले. पता है, यस, पता है आपको, कल बहुत लंबे समय के बाद हम पिकनिक गए थे क्योंकि मेरी बहन का बर्थडे था. Good. अब पूनम आप पूछिए, who is ready? Who is ready? I'm ready. I'm ready, भाभी. I'm ready. Okay, भाभी, after you.
Okay. You know what? Yesterday I saw lychee in fruit shop. तुमको पता है कल मैंने फ्रूट शॉप में लीची देखी. एक सेकेंड रुकिएगा, मैं जूम करता हूँ स्क्रीन को. ये देखिए, ये मैं रेणुका के लिए कर रहा हूँ और मैं केवल हिंदी को पूरा जूम कर रहा हूँ. पूरी स्क्रीन पे हिंदी आएगा. ये पा छोटा पा है रेणु और ता में आ की मात्रा है, पता. अगर आपने एक भी शब्द इधर लगाया स्पॉइल. नेक्स्ट, हु इज रेडी? Sir, I am ready. Sarika. Okay. Okay, You know, sir, Dr. Shinde has देखिए पूनम, आपने देखा जब 2-3 लोग का माइक एक साथ ऑन रहता है तो किसी का स्वर सुनाई नहीं देता है. सारिका, go ahead please, and Renuka, mute yourself please. You know what? Dr. Shinde has shifted to. पता है डॉक्टर शिंदे बेंगलुरु शिफ्ट गए हैं. Who is ready? Wait. I am ready. You know what? पता अरे sorry, हिंदी बोलने लगी. You know what? On 25th June, I proudly got vaccinated. पता मैंने 25 जून को वैक्सीनेशन करवाया. अब हम जो करने जा रहे हैं वो पूनम के लिए भी मददगार होगा और रेणुका के लिए भी होगा. और हम इसको स्क्रीन को करते हैं थोड़ा सा जूम, नीचे करते हैं और ये इस फॉर्मूले से ऋतु को अपना सेंटेंस बनाना है. पहले तो वो रखो जो लिखा है ब्लैक बोर्ड पे. Ritu, unmute yourself. Yes. Start speaking. Sir, same sentence. पहले you know what बोलो. You know what? I हाँ. Got vaccinated. I got vaccinated. On 25th June. हाँ. ये सब एक्सटेंशन है भाई. अंग्रेजी में वाक्य हमेशा सब्जेक्ट से शुरू करें जब तक आप इस क्लास में होते हैं. इसके बाद आप कुछ भी करें, it does not make any difference. Now repeat your sentence, Ritu, and speak Hindi. You know what? I got vaccinated on 25th June. पता मैंने 25th जून को वैक्सीनेशन करवाया. Yes, past simple का प्रयोग किया है आपने रितु और सही किया है. Good. Who is ready? I'm ready. Okay, go ahead. Okay, Aparna. You know, yesterday some children, yesterday Chimu and his friend was playing, and you know what? They have seen some deer, 2 deers near my location. अपर्णा, अगर तुम दूसरा सेंटेंस पास्ट सिंपल में बनाओगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा. Chimu and his friends saw deers, 2 deers near my location. कल चीमू और उसके दोस्त खेल रहे थे, पता, और उन्होंने डियर देखा हमारे एरिया में. सच्ची में खेल रहे थे. Aparna, they have seen one snake also. One snake too. So that you have missed, na? You have added that. I think Renu, snake is common, but deer is not commonly seen. Yes, sir. That's why deer is highlighted. Yes, sir. Very true. You know what, guys? Ritu is ready for delivering his speech. Oh, wow. You can see.
हालांकि ये वाक्य हमें उसी के मुख से ज्यादा अच्छा लगता है जो स्पीच देना चाहता है। Because Sir, I'm not ready, but I will try. नहीं, हमें ट्राई नहीं चाहिए। अभी हम एक खतरनाक घोषणा करने वाले हैं। अगर आपकी स्पीच अप टू द मार्क नहीं हुई तो हम आपको बैच से निकाल देंगे। अब आप फैसला करो कि आप ट्राई करना चाहते हो कि अप टू डेट स्पीच देना चाहते हो। आप 4 दिन और ले लो, लेकिन इट शुड बी अप टू डेट। Okay, sir. Tomorrow I will speak. So there you are. and sir, day after tomorrow, mine was pending actually on Saturday, Friday. I thought कि I will deliver, but somehow मैंने and on Thursday also. So it was like ठीक है, I was getting the time to prepare it more properly. Okay. Okay. Sir, can I deliver one more time? Yes, you must deliver। और हमारे यहाँ का नियम ये है कि अगर आपकी स्पीच अप टू डेट, मतलब वैसे तो ऐसा नियम नहीं है अप टू डेट है, अगर आप स्पीच में एब्सेंट होते हैं, कोई दूसरा दे रहा है और आप एब्सेंट है तो 50 रुपीज फाइन लगता है। और अगर आप अपना श्रेणी सुधार करना चाहते हैं तब भी 50 रुपीज लगता है। तो यू कैन डू इट, यू कैन गो फॉर श्रेणी सुधार। And I know कि this money will help for Yes. needy. Yes, yes, yes। Okay, anyways, come to the point। Next, who is ready, please? I am ready. Okay, please go ahead। You know what? On coming Saturday, my sister-in-law is coming from US after 5 years. Wow। Sir, I am ready. आपको पता है 5 साल के बाद मेरी सिस्टर इन लॉ यूएस से आ रही है। पूनम देखो, हम फिर से इसको जूम कर रहे हैं और हम पूरा जूम करके हिंदी शब्द आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये दिखा आपको क्या लिखा है? ये पा छोटा पा है और ता में आ की मात्रा है। इसके आगे ना कोई शब्द है ना पीछे। पता, आप उस सेंटेंस का पूरा मर्म खराब कर देते हो अगर आप एक भी शब्द इधर उधर करते हो। मूवीज में खूब बोला जाता है ये सेंटेंस, आप जरा ध्यान दीजिए। हिंदी में ध्यान दीजिए। ओके, नेक्स्ट प्लीज। Sir, should I make? हाँ, रेनू प्लीज। Yeah. You know what? If Soumya gets admission in Symbiosis, so I will meet my mom. पता है, अगर सौम्या को ना सिम्बोसिस में एडमिशन मिला तो मैं अपनी मम्मी से मिलूंगी। सिम्बोसिस पुणे। या वेरी गुड। अच्छा रितु, रेनू ये बताओ कि जैसे ही इफ लगाते हैं तो कौन कौन से नियम लागू होते हैं? सर इफ के साथ सब्जेक्ट इफ सौम्या। सर आई डोंट रिमेम्बर। कोई बताएगा कि रेनू ने ऐसा क्या लगा दिया जो हम हिंदी मीडियम वालों की 27 साल पुरानी आदत है? इफ सौम्या गेट्स एडमिशन। किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सभी की यही हैबिट है। सो लगा दिया। ओके। सो या so if Soumya gets admission then sir then I will meet। हाँ, no? मतलब कुछ ना कुछ लगाएंगे, है ना? Okay। वाह। If Soumya gets admission I will meet my mom। okay। ये इसकी रिकॉर्डिंग रेनू ने ही की थी दूसरे फोन से। ये लगाएं आप, और ज्यादा सा है तो ऐसा हम ऐसा निशान लगा देते, कॉमा लगाना सीखे। थोड़ी देर के लिए पॉज करें। दोस्तों, हम आपको एक ऐसे ही सूचना देते हैं। अंग्रेजी में एक पूरा चैप्टर है जो हम तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम उसका नाम आपको बता रहे हैं। उसका नाम है पंक्चुएशन। किसी ने सुना है आप में से? हाथ उठा के बताएं। यस सर। पंक्चुएशन का मतलब है विराम चिन्हों का प्रयोग। हम बिल्कुल नहीं करते हैं।
भाषा में तो बिल्कुल नहीं करते। राइटिंग के समय कर ले वो बात अलग है, लेकिन हम बिल्कुल नहीं रुकते हैं। अल्प विराम का मतलब होता है हल्का सा रुकिए, पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरा रुकिए। तो इसका प्रयोग पर हल्का सा ध्यान दीजिए। रेनू, पूरा इसका प्रयोग करते हुए सेंटेंस बोलो। एक्चुअली आई एम गोइंग टू टेक चार्जर, सो यू कैन कैरी ऑन विद दिस। या Okay. एक काम करते हैं, हाँ प्लीज कैरी ऑन। Okay. You know what? If Soumya gets admission in Pune Symbiosis, I will meet my mom. पता है, पता पता सौम्या को अगर सिम्बोसिस पुणे में एडमिशन मिला, दाखिला मिला, तो मैं मेरी मम्मी से मिलूंगी। यो आई एम सो हैप्पी। कल मम्मी ने यस बोले अगर इफ यू कम टू बॉम्बे देन आल्सो यू कैन कम टू पुणे, और इफ यू विल गेट इन द पुणे इटसेल्फ देन तो घर ही है। सो आई वाज सो हैप्पी कि आफ्टर 2-3 years आई विल मीट माय मॉम। सो हु इज रेडी? I'm I ready. am ready. Okay, Sarika, you please go ahead, then Ritu. Okay. You know what? Materialistic things are making our life easy, but they are making us lazy. पता है, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं वो हमारी लाइफ को इजी बना रही हैं, पर वो साथ में आलसी भी बना रही हैं। Who is ready? Yes, I am ready. Okay. You know what? Yesterday, while watching TV, me and my husband fought each other, but it was Cold War. पता कल टीवी देखते समय मैं और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई, बट ये शीत युद्ध था। Okay, I am ready? yes, I am ready. Okay. अपना yes पूनम जी आपके बाद, after you, sorry, after you. You know what? I'm trying too much to lose my weight, but I didn't lose even 100 grams. पता मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ वजन कम करने की, पर 100 ग्राम भी कम नहीं होता। You know what, Poonam? You can just follow my diet and you will lose 1 kg a day, and that is for sure. You know Poonam, I'm doing same, but I could not do. It is happening How with you me. take that multivitamins? What are you saying, Ritu? Ritu, you are shocked? Rituji was I muttering. thought, Renu, how you take that multigrains, millets? I don't like it, yaar. It's horrible. It's horrible. Oh. Yeah. No, okay, Ritu, I will make one video for you, and that you cook that way, the way I am cooking. That is very tasty. Yeah. Somewhere it may be some mistake, so we will rectify it. We will work on it. So you are so worried about that millets? Yeah. Okay. So who is I'll ready? do it for myself. Yeah, I will do. But definitely I will do that. Okay. Who is ready to make sentence? You know, guys, nowadays I'm walking 10,000 steps every day, and but still I'm not reducing myself. पता You know मैं what? 10,000 स्टेप चल रही हूँ, फिर भी 1 ग्राम ही नहीं कम कर पा रही हूँ। You know what, Aparna? From 3 days, I'm thinking to call you in the morning for a walk, but for some reason, I'm not calling you. Who is ready? You know, we are nowadays we are living in with wild creatures like heron, deers, and snake and crabs kind of thing. In my colony, in my line, Renu Bhabi and I enjoy this thing nowadays, and Sarika as well in Mumbai. Ritu, she has seen one leopard in her area.
पता उसने एक लेपर्ड देखा अपने एरिया में. And monkeys troop also living with them actually. पता All the animals, all the creatures from the zoo creatures. come to your locality, I think. They all are coming from zoo, national park. ओके लेडीज, पूनम ध्यान से सुनना चीजों को. रेणुका, विच चैप्टर डज दिस सेंटेंस बिलोंग? रेणुका. She's left, sir. Okay, she has left. Ritu, which chapter does this sentence belong? Sir, I think that sentence belongs to be present. रितु, आई थिंक का प्रयोग ऐसे रोजमर्रा की बोलचाल में करना अच्छा माना जाता है, लेकिन जब आप स्पेसिफिक हैं, इफ यू आर आंसरिंग एनी क्वेश्चन, तो आई थिंक आपके आंसर को कमजोर करता है. एनीवेज, म्यूट योरसेल्फ. Renu, which chapter does this sentence belong? So this sentence belongs to order and request. Thank you. Poonam, which chapter does this sentence belong? Poonam, are you there? Yes, Unmute sir, I am. yourself. Yes, sir, I am here. I'm asking about this sentence. He left no stone unturned. This sentence belongs to simple past tense. Absolutely correct. Wow. Good. Thank you. Ritu, what is the subject of this sentence? Sir, he is the subject in that sentence. Ritu, what is the subject of this sentence? He is the subject of that sentence. इस वाक्य का कर्ता कौन है? इस वाक्य का कर्ता ही है. अच्छा, एक अंतर आज बता ही देते हैं दोस्तों. जिस वाक्य में कोई भी शब्द भिन्न रूप से काम करता है, तब हम इन का प्रयोग करते हैं. लेकिन यहाँ ये किसी वाक्य में एक शब्द जब किसी दूसरे रूप में काम करता है, या तीसरे या चौथे, तब हम आमतौर पर इन का प्रयोग करते हैं. लेकिन सब्जेक्ट में तो कोई कंफ्यूजन होता नहीं. जैसे किसी सेंटेंस में एक शब्द प्रीपोजिशन भी होता है, वही दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव बन जाता है, कहीं वो हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, कहीं वो मेन वर्ब बन जाता है, तब हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं. इसको आप हिंदी के ट्रांसलेशन से तुलना ना करें. आप हिंदी के ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग ना देखें इसको. थैंक यू रितु. रेनू, what is the helping verb in this sentence? Sir, there is no helping verb in this sentence. इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? सर, इस वाक्य में कोई भी सहायक क्रिया नहीं है. Very nice, absolutely right. Aparna, what is left in this sentence? Sir, left is second form of verb in this sentence. Absolutely correct. Sarika, what is no in this sentence? Sir, no is negative word here. Very good. अब फिर से हम लौट के आते हैं. रितु, what is stone in this sentence? Sir, stone is in this sentence is noun. अरे यार, हमें यहाँ 4 लोग दिख रहे हैं और यहाँ पे दिखा रहा है 2 others. तो एक तो कल्पना जुड़ी होंगी और अच्छा पूनम. ठीक है. Okay, Ritu, you are absolutely right. It is noun here. Renu, what is unturned in this sentence? Sir, unturned is extension, object or extension.
Okay, correct. Sarika, what is unturned? Sir, unturned is an extinction. Okay, thank you. Aparna, what is unturned? Sir, undone is an object in this Very sense. nice. Poonam, what is unturned? Undone is second verb here also. Very good. Mute yourself. रेनू फिर से पूछ रहे हैं what is unturned here? Sir, unturned is object. Okay. Ritu, again I'm asking what is unturned here? Sir, unturned is object in that sentence. Sir, Very good. written as Sarika? sir, should I interfere? No, Okay. you should not interfere. Sarika? Sir, unturned is an extinction because Aparna? stone is हाँ. Aparna? Undone is an adjective. Correct. अच्छा, टेल मी ब्यूटीफुल लेडीज, क्या कभी हमने एक भी बार आपसे पूरी क्लास के दौरान बोला था कि क्रिया का तीसरा रूप प्रायः है? बताओ क्या बोला था, तो पूरा वाक्य बताओ। सर, क्रिया का तीसरा रूप प्रायः एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है। नहीं, यूज नहीं किया जाता बेटा, काम करता है। हम नहीं कर सकते। जी जी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली होता है, हम अपने मन से नहीं कर सकते। इस चीज को सभी लोग अपने जहन में उतार ले, हम नहीं कर सकते उसको। वो वहां पे अपने आप ग्रामर के नियम अनुसार ऐसा होता है। आई कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट, वो ग्रामर के नियम के हिसाब से होता है। तो ये बारीक सी चीज जहन में रखिए, आप देखिएगा आगे चल के आपको बहुत सी समस्याओं का हल मिलेगा। अपने बच्चों को पढ़ाते समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीजें, इतनी बारीक सी चीज बहुत मायने रखती है। तो अपने बच्चों के हिसाब से इस चीज को जहन में रख लीजिए बताने के लिए। और अगर नहीं भी पूछे, मान लो आपकी क्लास खत्म हुई, तो आप अपने बच्चे से जाके बोलना, यू नो व्हाट, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। तो वो बोलेगा, ये एक हमने ऐड से लिया है, क्योंकि उसको क्या मतलब है आप क्या बोल रहे हैं ना, वो तो अपना खेलने भाग जाएगा, आगे चलता होगा। कैन एनीबडी गेस द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? Sir, should I try? प्लीज गो अहेड। He left no stone unturned. सर, इसका मीनिंग ऑफ दिस इज कोई कसर ना छोड़ना। यस 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 यस, इन्होंने समझ लो बहुत परसेंटेज में बता दिया। टेंस के हिसाब से कोई हिंदी बोल दे भाई, जिसके जहन में आ गया हो। नहीं आया? छोड़ना। सर, छोड़ी, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। टेंस के साथ। अब पूनम देखना, यहाँ पे म्यूट करके ही सुनना कि इसका अगर हम अनुवाद करेंगे तो ये होगा कि उसने कोई भी पत्थर को बिना पलटे नहीं छोड़ा। ये हो गया अक्षरशः अनुवाद। हर पत्थर को पलट के देखा कि कहाँ मिलेगा उसको वो चीज। तो हर पत्थर को उसने पलटा, मतलब कोई भी पत्थर उसने पलटे बिना नहीं छोड़ा। ये उसका अच्छे से अनुवाद हो जाएगा। He left no stone unturned. हर पत्थर को ऐसे पलट के देखा, टर्न। ओके, हम पहला राउंड खेल रहे हैं। सारिका के से शुरू कर रहे हैं। सारिका, स्पीक इट एज इट इज। ओके सर। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, दैट इज उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अपर्णा दी। गुड। He left no stone unturned. उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मीनू भाभी। He left no stone unturned. उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। रितु?
He left no stone unturned. उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी. पूनम. He left no stone unturned. उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी. आर ऑल डन बच्चों? Yes, sir. All are done. चलो अब हम इसको बजर राउंड खेल रहे हैं दोस्तों. बजर राउंड का मतलब होता है जिसको पहले समझ में आ जाएगा वो पहले बनाएगा, फिर वो पूछेगा हु इज रेडी. अब आपको करके ये बताना है. इसमें बड़ा सेंटेंस नहीं बनाना, बच्चे ध्यान से सुन लो. सर आई बड़ा एम वाक्य रेडी. नहीं बनाना है. सुन तो लो बेटा हम क्या बता रहे हैं. इसमें बड़ा वाक्य नहीं बनाना है, लेकिन मूल वाक्य में चैप्टर और वाक्य की कैटेगरी चेंज करके दिखाना है आपको. आगे पीछे आप कुछ मत जोड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूल वाक्य में आपको चैप्टर बदल के दिखाना है और कैटेगरी. अब बताओ हु इज रेडी. सर आई एम रेडी. I'm ओके ready. सारिका. सारिका. Tiger Shroff leaves no stone unturned after grooming himself. Tiger Very Shroff good. ने sorry. Hindi is wrong. हिंदी इज रॉन्ग. हाँ, इंग्लिश तो बोलो एक बार फिर से. Tiger Shroff leaves हाँ no हाँ stone unturned हाँ, after grooming himself. करेक्ट. हिंदी. टाइगर श्रॉफ अपनी ग्रूमिंग के बाद कोई भी कसर नहीं छोड़ता. सो देयर यू आर. पिछली बार तुमने ने लगा दिया. जी जी जी. हाँ, ने लगाया और भूतकाल हो जाता है. वेरी गुड. सारिका ने प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव बनाया. अपर्णा, हु इज रेडी? I'm ready, sir. ओके. Um, no one studious student can leave no stone unturned for preparation competitive exam. कोई भी अच्छा पढ़ाकू स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ सकता है. वेरी गुड. स्कैन चैप्टर का बहुत अच्छा प्रयोग देखिए ब्यूटीफुल लेडीज. लेकिन अपर्णा एक बार हमारे साथ इस वाक्य को दोहराओ. बोलो. नो नो स्टूडियस स्टूडेंट. स्टूडियस स्टूडेंट. हाँ, अब बाकी सब सही है. समझ गए कि नहीं? गॉट इट और नॉट? यस सर, आई गॉट इट. नो वन लगाने की जरूरत है, सीधे नो स्टूडियस स्टूडेंट. ओके, नाउ हु इज रेडी? Sir, I am ready. ओके, रेनू. Okay. Ravi left no stone unturned to learn English. रवि ने कोई कसर रवि ने अंग्रेजी सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी. ओके, लेकिन रेनू आपने चैप्टर नहीं बदला. यस सर, मैंने पास्ट लिया. द चैप्टर. यस. पास्ट तो सामने मौजूद ही. हाँ जी. ओके, पूनम योर टर्न एंड रितु इज आल्सो रेस्ट. Yes, sir. हु इज रेडी? I am ready, sir. I am ready. ओके, पहले रितु फिर पूनम. My son Kshitij is learning share marketing nowadays. He is learning very minutely. He left no stone unturned. बेटा रितु तुम बिल्कुल नहीं सुनती हो ध्यान से. यू डू नॉट लिसन एनीथिंग केयर. Sir, I was listening, but I not understand properly. देखो ना अपर्णा ने क्या किया, देखो ना सारिका ने क्या किया. रितु तुम्हारे जैसा तो रेनू ने भी कर दिया. अब Sir, पूनम that को time देखो. I was making my sentence in my mind. हाँ, That was I was not तो listening properly. पूनम हम फिर वही बात दोहराते हैं. म्यूट करके सुनना. तुम भी म्यूट कर लो रितु. इस क्लास में आपके राइट ब्रेन का प्रयोग करते हैं जो कि पूरे समय एक्टिव रहता है. आप पहले से सोच के कोई वाक्य नहीं रख सकते, वो कट जाएगा. और अगर आप अपने सोचने के चक्कर में इनको और इनको नहीं सुन रहे हैं
तो यू आर लूजिंग अ लॉट, यू आर डेफिनेटली लूजिंग अ लॉट। आपको पता नहीं है कि आपका ब्रेन कितना ताकतवर है, वो एक साथ कई काम कर सकता है, मल्टीटास्किंग, लेकिन आप उसको ट्रेन नहीं कर रहे हैं। ट्रेन योर ड्रैगन। पूनम। The doctor left no stone unturned to save the patient's life. अब ये देखो रितु, बिल्कुल वही हुआ। रेनू ने भी पास सिंपल लिया, तुमने भी उठा के पास सिंपल ले लिया, पूनम ने भी उठा के पास सिंपल लिया। अब इसका क्या अर्थ निकालें? अब तुम सारिका अपर्णा का सेंटेंस सुनो जरा। नहीं, सारिका का पहला सेंटेंस सुनो, हम बोल देते हैं। टाइगर श्रॉफ leaves no stone unturned to after grooming himself। ये किसने अपना माइक ऑन किया है? ऑफ कर लो। अपने आप को ग्रूम करने के बाद टाइगर श्रॉफ कोई भी कसर नहीं छोड़ता है, की है, से है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है भाई। अपर्णा का सेंटेंस सुनो। नो स्टूडियस स्टूडेंट कैन चैप्टर में बनाया पढ़ना ने भाई, सुनने का। और नहीं सुन पाओ तो कम अगेन बोलने के लिए आप बिल्कुल फ्री हो, ऑल द टाइम यू आर फ्री टू स्पीक कम अगेन। मैं से कम अगेन नहीं सुन पाओ तो। अपर्णा ने कैन चैप्टर चुना, सारिका ने प्रेजेंट सिंपल चुना, हम आपसे बोल रहे हैं। और तुमने ये भी नहीं सुना रितु, हमने साफ साफ बोला था कि आगे पीछे हमें कुछ नहीं चाहिए, मत लगाओ। आज बड़े सेंटेंस की होड़ नहीं हो रही। इट इज नॉट द रेस ऑफ बिग सेंटेंस। इसके मूल सेंटेंस में आप चैप्टर बदल के बताओ, जितने आज तक सीखे हैं पहले दिन से लेकर आज तक। दो बाहर आ गए, एक प्रेजेंट सिंपल बाहर आया सारिका के मुंह से, दूसरा कैन बाहर आया पढ़ना। अब आप, और हमने पहले भी बोला था, इससे पूनम को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उसको ये समझ में आएगा कि अच्छा कैन चैप्टर मिल गया है इस बैच में, प्रेजेंट सिंपल मिल गया है। अब तुम लोग सब पास्ट सिंपल में बनाए जा रहे हो और आगे पीछे जोड़ रहे हो। मत जोड़ो, सब्जेक्ट चेंज करो, टेंस चेंज करो, कैटेगरी चेंज करो। अच्छा, अब हम पूछते हैं तुम लोग को, अगर नहीं समझ में आया सर आई एम हु इज रेडी टू चेंज द कैटेगरी? ये बताओ, हु इज सर रेडी आई टू एम चेंज रेडी। कैटेगरी? I'm ready to अच्छा, change. अब I'm हम ready, sir. एक मिनट रुको, अभी रुक जाओ। अब हम पूछ पूछ के करते हैं। अब रेनू ये बताओ कौन सा चैप्टर लेने जा रही है? सर कुड। हाँ, अब ये रेनू कुड का चैप्टर सेंटेंस बनाने जा रही है। और रेनू ये बताओ कैटेगरी कौन सी ले रही है? सर अफर्मेटिव। तो कैटेगरी नहीं चेंज करे। सारिका तुम बताओ कौन सी कैटेगरी लेने जा रही है? सर हम इन्वर्टेड बना रहे हैं। सर मैं भी हाँ, इन्वर्टेड प्रेजेंट बना लेता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रुको। में इन्वर्टेड। बहुत देर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आया है। अभी सभी लोग आंख खोल के सुनो। सारिका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने जा रही। और अपना सीसी ऑन कर लो भैया, जिसका नहीं हो उसको यहाँ लिखा दिख जाएगा। ऑन करो सारिका। All the policemen, are all the policemen leaving no stone unturned for pursuing their duty? क्या सभी पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सारिका कम अगेन प्लीज। हाँ, अब एक सेकंड रुकना। हमने ये निकाल लिया है, वहां लगा था, अब हम यहाँ लगा दे रहे हैं। दोस्तों, ये 6 प्रकार के वाक्य बनते हैं पूरी दुनिया में, केवल 6 प्रकार के वाक्य बनते हैं। चलो कम अगेन कर दो, सीसी ऑन कर लेना बेटा। Are all the policemen leaving no stone unturned for pursuing their duty? क्या सभी पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं? I'm ready for a negative category with should chapter. We should not leave no stone unturned to learn English. हमें इंग्लिश सीखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। बच्चों बताओ,
जैसे ही आपने शुड के साथ नॉट लगाया तो यहाँ कोई और परिवर्तन होगा क्या? Yes, sir. We should not leave any stone unturned. एनी हो जाएगा ना भाई? अरे कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस। अभी Yes. अपर्णा बहुत स्मूथली बोलो सेंटेंस फिर से। Okay, sir. We should not leave any stone unturned to learn English. हमें इंग्लिश सीखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। Sir, should I who is make? ready? Yeah. Yes, please, please. अब आप Sir, खुद का फॉर्मेटिव भी बना सकते हो। सर मैं कुड का, हाँ यस सर, वो बनाती क्वेश्चन इन्वर्टेड। क्वेश्चन बना, इन्वर्टेड बना। ओके। Could he left no stone unturned for the directing movies? क्या उसने पिक्चरें डायरेक्ट करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी? ये तो बात सिंपल हो गया रे। Could he सका? हाँ, ये क्या वह कोई भी मूवी डायरेक्ट करने के लिए कोई भी कसर ना छोड़ सका? नहीं सर, अब कैसे? ये अच्छा नहीं लग रहा ना? हाँ। तो हमें ऐसे ही सीखना है। पूनम, इसी भाव के साथ आप भी आगे बढ़े कि आप सेंटेंस बनाए, यानी आप कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, बाद में अपन देख लेंगे। लेकिन इसमें एक जो सबसे अच्छी घटना हुई है उसका ध्यान, उसके लिए हम पूनम का ध्यान आकर्षित करते हैं और बाकी सबका भी, कि रेनू के मुंह से इंग्लिश तो निकली, दैट्स ऑल। गलत हुई तो एक और प्रयास करना होगा, सही हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर एक और प्रयास करेंगे। लेकिन इंग्लिश तो बदस्तूर बाहर आ ही नहीं। अल्टीमेटली यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, वेदर यू आर मेकिंग रॉन्ग। नाउ हु इज रेडी? Sir, I am ready. Okay. You know what? Our Indian soldiers will not leave no stone unturned to save us. पता है हमारे भारतीय सैनिक Aparna and Sarika are like jaws, like. Okay, sir. Okay, sir. I got it. You know what? Our Indian soldiers will not leave any stone unturned to save us. पता है हमारे भारतीय सैनिक हमारी रक्षा के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, हम चाहे तो यहाँ पे शब्द बदल के लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखना गलत होगा। हमने उसको हाईलाइट बस कर दिया कि जरूरत के हिसाब से शब्द को आपको बदलना, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट Sir, I am ready. I couldn't left stone unturned. बेटा, कुट के साथ क्रिया का कौन सा रूप लगता है? सर मैं नेगेटिव सेंटेंस बना रही। कोई सा भी बनाओ, लेकिन कुट के साथ क्रिया का कौन सा रूप लगता है? याद कर लो, पेज खोल के देख लो। तो तुम तो सेकंड फॉर्म लगा रहे हो। सॉरी सर। I could not leave stone unturned to grooming my son. मैंने अपने एक बेटे शब्द छूट गया है बेटा, एक बहुत महत्वपूर्ण छोटा सा शब्द छूट गया है। I could not leave any stone unturned. हाँ बेटा, तुम सुनो ध्यान से और कम अगेन चाहो तो हर बार बोल दो कम अगेन। सारिका को भी कम अगेन बोला, पढ़ना को भी, लेकिन सुनो कम अगेन तुम्हें बोल रहा है। Yes. Wait, I could not leave any stone unturned to grooming my son. मैंने अपने बेटे अच्छा को बताओ ऋतु कि टू के बाद हमेशा क्या लगता है? किसके बाद सर? टू
नाम के प्रपोजिशन के बाद पश्चात हमेशा क्या आता है? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। और तुम कौन सा रख रही हो? तुम रख रही फोर्थ फॉर्म। Oh, आईएनजी sorry. फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। I could not leave stone unturned to groom my son. I could not leave any stone unturned to groom my son. मैंने अपने बेटे को बड़ा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ये तो पास्ट सिंपल हो गया ना बेटा। छोड़ी, गया, खाया, पिया, आया, सोया, पास्ट सिंपल। यही गलती रेनू ने भी की थी अभी 2 मिनट पहले। कुड में और पास्ट सिंपल में अंतर समझो ना बच्चों। कुड बिल्कुल अलग चैप्टर है, पास्ट सिंपल बिल्कुल अलग है दोनों भूतकाल। बोथ आर पास्ट, लेकिन कुड का अपना एक अर्थ होता है, पास्ट सिंपल का अलग होता है। चलो तब तक पूनम को बनाने दे। तुम सोचो बेटा। Sir, I am also ready. अच्छा, रेनू इज रेडी। Poonam, are you making sentence? You say first, then I will say. Okay, thank you. Sir, I am using a present continuous tense. Okay. Yeah, students, negative sentence I am making. Students are not studying hard for competitive exam these days. बच्चे आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर रहे। अच्छा, फिर बस Where is the idiom, Bhavi? Okay. Oh God. Okay. सर अभी कुछ ज्यादा ही हो गया। अफर्मेटिव सर्च बनाती हूँ। स्टूडेंट्स लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड for competitive exam. Sorry, Bhavi, again. Past simple. Left, you used left. Okay. अच्छा, एक काम हम करते, वेट। एक सेंटेंस हम पूनम से बनवाते हैं। आप सब ध्यान से सुनिएगा, सीसी ऑन कर लीजिए। पूनम हमारे साथ बोले, कैन। पूनम, unmute yourself. Where are you? शर्मा गई। Where are you? ओके, चलो ऋतु से बुलवाते हैं। ऋतु बेटा बोलो, कैन यू लीव सिंगल स्टोन अनटर्न्ड। क्या आप इतनी सी भी कसर छोड़ सकते हैं? अब सेंटेंस आगे प्लस हो जाएगा, वो बात है। एक्चुअली ऋतु के सेंटेंस में सिंगल शब्द बड़ा फिट होने वाला था। अब वो गुड को भूतकाल का हिंदी ले रही है, तो हमने उसको अभी छोड़ दिया। बहुत मस्त सेंटेंस बनेगा और उसमें सिंगल शब्द आ जाए। और एक सेंटेंस हम अपना भी बनाते। तुम लोग और उसमें जरा व्हाट्सएप में भेजना अब सेंटेंस। समय हो गया है, आज अपन यहाँ विराम देंगे। एक छोटा सा सेंटेंस सुनना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। बेटा पप्पू, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। बेटा पप्पू, कोई कसर मत छोड़ना। Order or request. ऑर्डर और रिक्वेस्ट। आप चैप्टर के दृष्टिकोण से देखिए, बिल्कुल रिलैक्स होके व्हाट्सएप में सेंटेंस भेजिए। आज मैं उसको चेक कर लूंगा, ठीक है? मैं विदा लेता हूँ, लेकिन आप कंटिन्यू रहना चाहें तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।
थैंक यू सर। मुझे इतनी हंसी आ रही है, रेनू से सर बोलते हैं फिर मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या रह गया था, हे भगवान। अच्छा इतना चलो प्यारा यार, बोला इसने, इतना प्यारा बोल के खुश हो गई कि बहुत हाँ, मैं अच्छा तो वो बड़ी सर खुश बोलते हो हैं गई फिर। कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिया। हाँ, इतनी कोशिश की है लेकिन सब बेकार। नहीं नहीं, बेकार नहीं, बस मजा आया उस मूवमेंट में। सर ने बोला हाँ फिर क्या हुआ। हाँ, कभी चलो कभी एक एक ऐसा मेंटल ब्लॉकेज हो जाती है कभी। और बताओ, आप लोग एक एक सेंटेंस बना लो भाई, थोड़ा भला हो जाएगा। पूनम आप बना रहे थे ना? हाँ हाँ मैं बना रही थी। ओके, हाँ वो कहाँ मेरा चली गई नेटवर्क थी इशू आ पूनम जा रहा आप? सर बोल रहे थे, आप शर्मा गई क्या? नहीं नहीं, वो नेटवर्क इशू है ना, तो आउट हो गई थी गूगल मीट से, फिर वापस रीज्वाइन किया, लेफ्ट हो तब गई। तक फिर हाँ सर। पूनम is हाँ looking today, Poonam is looking pinky, no? Face is also in color reflection. yesterday she has hang out na, so wo glow is there by with family नो get इट together. नो नो And her sister-in-law is coming from USA. So she's very happy. no, she is not coming. It was imaginary sentence. Okay. She is not coming. Okay, Poonam, so make your sentence. my co-sister's daughter is coming from Delhi, Jodhpur, Rajasthan, and my co-sister's daughter is coming on this Saturday. Sarla Bhabhi's daughter, Renu, you know, na? Yeah. Huh. Okay. She is coming from Jodhpur on this Saturday, but I make sentences with sister-in-law, and some to make sentence more creative, I added that she is coming from USA. Okay. Poonam, Okay, so where have I'm you done? I'm sorry, interrupted you. Where have you done counseling course? you are asking me? Yeah. Yeah, I have done it from Mumbai with Shishir Palsapure sir. With from? Shishir from CBT, you know, cognitive behavior therapy. Yeah, I know. So I have done it from Mumbai. Okay. In which year? I had done it in 2012. 2012. Now you are practicing? Sorry, You are come again? practicing now? You are Yeah, I am practicing doing. From till the time I have done, I am doing continue from online. You are doing online and as well as online. offline, both. Both. Right now, you are doing from your house, or you have Yes, now. any center? No, I am not going anywhere else. Earlier, I was going to school, but now I am doing it from my home only. Okay, go ahead. Okay. Are you making sentence? Now I'm making sentence with this sentence only. Na, he left no stone unturned. So we have to use other like tense. Na, we don't have to use the simple past tense, right? So I was making that ki when my father had got paralysis, then my brother had not left. My brother had left no stone unturned to मीन्स उनके लिए उसने मतलब बहुत कुछ किया, सो उसने कुछ भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि वो ठीक हो जाएं. सो व्हाट शुड आई से इन फॉर दिस? My brother had left no stone stone unturned for to his make recovery. him For his recovery. for his recovery, but he could not save his life. Is it true? Yes. Oh. Okay. Ritu, are you ready with your sentence?